اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آخر اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی حکم دے دیو کہ آپ بھی اب مکہ چھوڑ کے ہجرت کر جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سپنا میں کوئی جگہ تو دیکھا کری ہی جہاں درخت ہی درخت روکھ ہی روکھ ہوتا۔ آپ کو اندازو 2 شہرن کے مہی ہو۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ تو یثرب کے مہی ہجرت کر جا جہاں باقی مسلمان گیا پڑا ہاں۔ یثرب کے علاوہ جو حبشہ ملک کے مہی ہجرت کر کے گیا ہا ان میں سے کئی بگت کے مکہ آگا ہا اپر کئی ابھی تک حبشہ میں ہی ہا۔ آپ مکہ میں اپنا بچپن کا یار رازدار جانثار ابو بکر کے پہ آگا۔ ہاں یہ بات خاص ہے کہ جب حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے پہ چلی گی تو بالکن کی دیکھ بھال کے مارے آپ نے ایک مسلمان بی بی سے نکاح کر لیو ہو۔ بی بی کو نام ہو حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بی بی سودا ان بی میں سے ہی جو پہلے اسلام لائیں۔ ان کو شوہر فوت ہو گو ہو اور آپ کی بی بی خدیجہ اللہ کے پہ چلی گئی۔ بی بی سودا کو ننہال اور آپ کا دادا عبد المطلب کو ننہال ایک ہی ہو یا ہمارے آپ نے بی بی سودا سے نکاح کر لیو۔ جا سال بی بی خدیجہ اللہ لو پیارے ہوئی 10 نبوی لو 22 سال آپ نے دوسروں نکاح کر لیو ہو۔ پھر تیسروں نکاح آپ نے اپنا بیلی ابو بکر کی بیٹی عائشہ سے کرو ہو اپر ابھی رخصتی نہ ہوئی ہی۔ ابو بکر آپ کا سب سے قریبی ساتھی میں سہا ساتھ آپ کو سسرا بھی ہا۔ تو آپ ایک دن ابو بکر کے پہ آیا۔ آپ ہر روز ہی واقع پہ گھر آتا اپر وا دن بے وقت آیا تو گھر والا چونکا کہ ضرور کوئی خاص بات ہے۔ آپ نے بھیتر آ کے کہی ابو بکر گھرائیان نے اندر بھیج دے اکیلا میں میری بات سن۔ گھرائیان میں کون؟ ایک ابو بکر کی بیوی ہی ایک وا کی بیٹی۔ پھر آپ نے بتائی کہ ابو بکر مولو ہجرت کو حکم آگو ہے۔ ابو بکر نے کچھ نہ پوچھی کہ کد جانو ہے کہاں جانو ہے، جھٹ پوچھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی ساتھ چلوں گو؟ آپ نے فرمائی ہاں تو بھی میرے ساتھ چلے گو۔ تو ابو بکر کی آنکھن میں خوشی کے مارے آنسو آگا۔ ابو بکر آپ سے 2 سال چھوٹو ہو اپر آپ سے دنیا میں سب سے گھنو پیار کر رکھ رہے ہو۔ آپ نے یا کے بعد باقی حساب کتاب لگائے ہو کہ کا دن جانو ہے سواری کیسے کرنی ہاں۔ ابو بکر نے کہی کہ 4 مہینان سو میں نے 2 اونٹنی چرن کو چھوڑ راکھی ہاں سفر کے مارے تیار کر رہی ہے اب وہ تیار ہاں۔ آپ نے فرمائی کہ ای سارو منصوبوں خفیہ رہے گو کائی کو بھی نہ بتانو۔ ات کو یہ 2 پاک ہستی اپنا نکلنا کو پروگرام بنا رہی ہو ات کو مکہ والان کو اکٹھ ہو رہو۔ وہ بھی اب تنگ آگا کہ روز کا ایک قصہ ہے کیسے ختم کراں۔ ان کا خاص پنچ اکٹھا ہوا۔ ہر قبیلہ کو سردار آئے دارالندوا ایک گھر دشمن نے چن راکھو ہو جہاں چھپ کے مسلمان کے خلاف منصوبہ بناتا۔ آج کی پنچایت میں خاص پنچ ہے۔ بنو شمس قبیلہ میں سو شیبہ اور رقبہ جو ربیہ کا بیٹا ہے اور ابو سفیان بن حرب شامل ہے۔ بنو نوفل میں سو تیمہ بن عدی جبیر بن معتم حارث بن عامر اور بنو عبدالدار میں سو نصر بن حارث بن کلدہ بنو جمعہ میں سو امیہ بن خلف بنو مخزوم میں سو ابو جہل بن ہشام بنو سہم میں سو بنیہ اور منبہ حجاج کا بیٹا بنو اسد بن عبدالعزا میں سو عبد البختری بن ہشام زمہ بن اسود حکیم بن حزام اکٹھا ہو کے بیٹھا۔ سب نے اپنی بولی ان کو خاص مقصد اکٹھا ہون کو یہ ہو کہ اب کرنو کہا ہے۔ کائی نے کہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں پکڑ کے کئی مکان میں بند کر دیو اور مکان کے تالو لگا دیو۔ کائی نے بات نامنظور کر دی کہ یہ بات ٹھیک نہ ہے۔ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کئی ساتھی بن گا ہاں انہوں نے پتہ لگو تو آ کے ہمن سے بدلو لیں گا کہ ہم نے ان کے نبی کے ساتھ کہا کری۔
काई ने कही यह ऊँट पे बिठा दे और ऊँट होवे बावड़ो, ऊ यह जहन मर्जी ले जावे, हमारी तो जान छूटे। दूसरा ने कही ना ई बात भी ठीक ना है, ई बाहर जाके अपना अलग जत्थो बना लेगो, तमने पतो तो है यू कैसे मन भावनी बोली बोले है। आखिर में अबू जहल बिन हिशाम बोलो तो ऐसा करो कि हर कबीला को एक आदमी ले, वे मोहम्मद के घर के बाहर खड़ा हुआ और जब वो घर से निकले तो सब अपनी अपनी तलवारें ने वहाँ पे मारा, वो मर जाएगो और कई एक कबीला पे वाको इल्ज़ाम ना हासे। सबन ये बात बड़ी समझ जाई कि नू मोहम्मद का साथी कई एक कबीला से बदलो ना ले सकंगा। हमला करन वाला का नाम नूम पक्का करके उन्होंने दिन मुकर्रर कर लियो कि फला रात को वह के घर के बाहर जमा हो जाएगा। उसको अल्लाह ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बता दी कि जा रात मुशरिकन ने मंसूबा बनायो, वाई रात मक्का में तेरी आखिरी रात है। अब मक्का में आपका इंतहाई जानिसार दो साथी रह गया, एक अबू बकर और एक अली। आपने अबू बकर के साथ तो जान को मंसूबा बना रखो हो। अली बुलायो और कही आज रात मैं मक्का से निकल जाऊँगो, मेरे पे मक्का वालन की अमानत की चीज़ रखी पड़ी हाँ, तो नू कर के आज रात मेरी खाट पे सो जा, फ़िक्र बिल्कुल भी ना करियो, कोई भी तेरे कुछ ना बिगाड़ सकेगो, बेफिक्र रहियो। ऐसो अली बहादुर और जानिसार एक पर नू ना सोची कि बाहर 50 आदमी मारन को खड़ा हाँ, मेरे कहाँ बनेगो। वाने खुशी खुशी वाई बिस्तर पे सोना की हामी भर ली। ईशा की नमाज के बाद आपने अल्लाह को नाम लेके अपना दरवाज़ा खोलो। बाहर ऐन दरवाज़े के सामने दुश्मन का आदमी तलवार ने सूती खड़ा है। आपने अल्लाह का हुक्म के मुताबिक सूरह यासीन की 8-9 आयत की तिलावत शुरू कर दी और बेझिझक अल्लाह पे यकीन रखते हुए दुश्मन के ऐन सामने से निकल गया। अल्लाह ने उन दुश्मनन की आँखों पे पर्दो घेर दियो। आप खैर खैरियत से अपना घर से निकल आया। अबू बकर का घर के में ही चला, हूँ से अबू बकर साथ लियो। अबू बकर ने भी आज की रात के मारे सारी तैयारी कर रखी ही, जल्दी जल्दी सामान लियो। अबू बकर की बड़ी छोरी अस्मा ने तैयार करो खानो, बासन में रखो और बांधन को कोई चीज़ ढूंढी। कोई कत्तर ना मिली तो अपनी कड़ी पे बंधो, पटको उतारो। और मैं मेहरबानी कपड़ान के ऊपर ऐसो पटको बांध लेक रही, पटकान सु बासन कैड़ी से बंद कर दियो और बाप को दे दियो कि 2-3 वक्त को खाना हो जाएगो। नबी ने और अबू बकर ने सारो मनसूबा बना रखो हो कि कौन सी गैल सु कैसे कैसे जानो है, सवारी कहाँ सु लेनी है, गैल बतान वालों कहाँ मिलेगो। दोनों अल्लाह को नाम लेके घर से चल पड़ा। जब ऊंची जगह पे पहुंचा तो आपने मक्का के महीन देखो, सारो शहर सो रहो, आँखन में आंसू आगा। ही नहीं पैदा हुई, ही नहीं माँ बाप रह क्रिया, ही नहीं ज़िंदगी का 53 साल गुजारा, ही नहीं खेलो कूदो, ही नहीं अपनान की गाली गलौज सुनी, सगा चाचा ताउन का ताना झेला। एक एक बात याद आ गई। जुल्म तो बहुत हुई हो, या ज़मीन पे या हस्ती के साथ, पर फिर भी यह ज़मीन से मोहब्बत ऐसी ही कि अब बिछड़ते वक्त आँखन में आंसू आगा। ईसाई आलम वर्का बिन नौफल ने तो 13 साल पहले ही आज का दिन का बारे में बता दियो हो कि तेरे शहर वाला तो ही सु निकाल देगा। 13 साल से ही यह बात को पता हो, पर जाते वक्त अब आँखन में आंसू आगा। सारा जुल्म दुख दर्द भूल गा, हिजरत को दुख ऐसो भारी लगो। भारी आवाज़ में बोला, ए मक्का, तू मोए सारी दुनिया में सबसे घणो प्यारो है, पर तेरा बेटा मोहिन रहन ना देवो। 27 सफ़र 13 नबवी जुमेरात को दिन बतावा। अंग्रेज़ी तारीख 12 सितंबर 621 बने हैं। जा रात आपने हिजरत लो पाँव उठायो। कोई कहवे है कि यकम रबीउल अव्वल 13 नबवी ही जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत को चला। एक शहर में ज़िंदगी का 53 साल गुजारा। जब बूढ़ो होने लोगो तो शहर ने निकाल दियो, तो शहर ने निकालो दे दियो। अल्लाह की गैल में 1000 दुख उठाया, अभी दुखन की गिनती पूरी ना हुई, अभी तो और आजमाइश आनी ही, बस जगह बदल रही है। भारी दिल सु भारी पावन सु ज़िंदगी को एक और सफ़र शुरू करो। चल मक्का का बेटा, मक्का ने तू छोड़ दियो। यही मक्का हो जो हज़ारन सालन से तेरी बाट में बैठो हो। अब याई ने तो सो खुदा हाफिज़ कह दी। मक्का का बेटा तोलो मक्का को आखिरी सलाम, जा यसरब लू जा।
वाहे मक्का जैसो मुबारक बना दे। जा मक्का का बेटा तुल मक्का को सलाम। मक्का है छोड़ते वक़्त आपकी आँखों में आंसू आ रहा तो आंसू मक्का का भी बह रहा। सफ़ा पहाड़ी रो रही, मरवा पहाड़ी रो रही, मक्का को जमजम रो रहो, बैतुल्ला को गिलाफ रो रहो, मक्का को ज़र्रो ज़र्रो रो रहो। उसको यसरब अब अपनी किस्मत पे इतरा रहो और बाट देख रहो कि कद नबी का पामने चूमे गो। चाचा की, दादा की, बीबी की, बेटा की कब्रन को खुदा हाफिज़ कह के मक्का सो दुखी दिल से चलो। अभी घर की बीबी और बेटी मक्का में ही हालात ऐसा ना हा कि उन्होंने भी साथ ले जाता। दूसरी वजह ये भी ही कि कुरैश वाला बहुत जालिम हा, अपर उनमें ये एहतराम हो कि घर में ना घुस क्रिया हा, बहन बेटी की इन बातन में इज्जत कर क्रिया हा। यही वजह ही कि कत्ल का इरादा सो घर से बाहर खड़ा हुआ, घर में ना कूदा। जहन पन्हा लेना को इरादा हो उसको चला। ये एक पहाड़ हो जो मक्का से 4-5 मील दूर हो। नाव हो सौर, कोहे सौर को पहाड़ या सौर को पहाड़ कह क्रिया हा। या का पत्थर बड़ा नोकीला और चुभन वाला हा। एक पहाड़ तो ऐसा हुए है कि जो माटी को बनो हुए है, वहाँ पे चढ़ना आसान हुए है। इस सौर को पहाड़ नोकीलो पत्थरन को हो, या की चढ़ाई बड़ी मुश्किल ही। या के ऊपर एक जगह बनी पड़ी ही कुदरती ऐसे गुफा सु गार के वहाँ। दोनों अजीम मुहाजिरन ने सौर का गार में जानो हो। पहाड़ पे चढ़ते चढ़ते रसूलुल्लाह का पाँव फटका, खून निकलने लगो। वो पाँव जो अर्श ताला से हुआया, ऐसा अजमत वाला पाँव ज़मीन पे खूनम खून हो रहा। अबू बकर एहसास हुई कि आपके साथ ही मसलो हो रहा है, तो वहाँ ने आप अपना कंधा पे उठा लिया, जैसे लोग पद्धी पे चढ़ा ले वहाँ ऐसे चढ़ाया होगा। आखिर गार में पहुँचा। अबू बकर ने आप से अर्ज़ करी कि आप बाहर बैठो। फिर अंदर गयो। गार अंदर सो अंधेरा में ही साफ़ करो, पत्थर वत्थर इतवित को हटा के जगह बनाई। फिर सोची कि गार में कुछ पोल सुराख भी होएगा, टटोल टटोल के वो बंद करा। बंद करन को पत्थर कम पड़ा तो अपना फेंटो फाड़ के उन पोलन में ठूंसो। फिर आप से अर्ज़ करी कि अंदर तशरीफ़ ले आओ। रात होन गुजारी, उसको सकाली हुई, सुबह हुई। आपके घर के बाहर खड़ा दुश्मन ने पता चलो कि अंदर तो अली है, आप तो जाने कहाँ चलागा। गुस्सा सुतिल मिलागा। उन्होंने अली पकड़ो और घेर लियो, मारो कूटो, पकड़ के लेगा, काबा तक लाया, कुछ देर तक बांदी बनाए रखो, फिर आप ही छोड़ दियो। उनका जहन में आयो कि सबसे गहरो गाड़ी बेली तो अबू बकर है, वाह पतो होएगो कहाँ गयो है। वो अबू बकर के घर गया। वहाँ की छोरी आसमा ने दरवाज़ो खोलो। अबू जहल ने पूछी, छोरी तेरे बाप कहाँ है। वहाँ ने कही, अल्लाह की सो मोय ना पतो। अबू जहल यह बात सुन के गुस्सा में भर गो, और तो कोई बस ना चलो, 12-13 साल की कमज़ोर सी छोरी के ज़ोर की तमाइचो मारो। ऐसी ज़ोर की तमाइचो हो कि अस्मा की बाली कान में से गिर पड़ी। बाहर छोटी सी छोरी अबू जहल से मार खा के अंदर आई। घर में बूढ़ा और आंधा दादा ने एक दिन कही, लाली तेरे बाप तहारे साथ बड़ो जुल्म कर गो, आप भी चलोगो और घर का सारा पैसा ने भी ले गो। अस्मा बड़ी समझदार ही। वहाँ ने एक थैली पोटली में छोटा छोटा सा किंकर भरा और वाला में रख दिया जहाँ घर का पैसा धरा हा। अपना दादा को हाथ पकड़ के हुन तक लाई। दादा अबू कहाफा जो आंधो भी हो और काफिर भी, वह का हाथ वह पोटली से लगवाया कि दादा बाप हमने नोई ना छोड़ गो, देख हमन लो खर्चो पानी दे के गयो है। दादा ने तसल्ली करके कही, चल जो रुपया धेला देगो है तो ठीक है। छोटी सी बच्ची की सियाणपत ही जो वाने दादा की तसल्ली के मारे और अपना बाप को भरम रखन को ऐसो हरबो करो, नहीं तो असल में तो वह को बाप घर का सब रुपया पैसा है लेगो हो। ई दादा अबू बकर को बाप अबू कहाफा वह दिन मुसलमान हुयो जा दिन मक्का है फतह करन नबी ओझो मक्का में तशरीफ़ लायो। अबू बकर वो अकेलो सहाबी है जाकि 4 नस्ल सहाबी हुई। उसको आप और अबू बकर 3 दिन तक गारे सौर में रहया। खान पीन को इंतज़ाम करता कि अबू बकर को छोरो अब्दुल्ला बिन अबू बकर आतो और शहर को हाल अहवाल बता जातो कि दुश्मन कहाँ कहाँ कर रहा।
और अबू बकर को गुलाम आमिर बिन फ़हीरा, जो अबू बकर बकरी ने चरान लो पहाड़न पिलातो तो हैंक हाँक के बकरी ने सौर तक पिलातो और बकरीन को दूध काट के नबी और अबू बकर को दे देतो। कोई कहवे है कि 3 दिनों तक बस दूध पे ही गुजारो करो। कोई कहवे है अबू बकर की बेटी अस्मा घर सुखानो लाती और चोरी चोरी हिन पकड़ा जाती। आमिर बिन फ़हीरा का पावन का निशान, अस्मा का पावन का निशान, अब्दुल्ला का पावन का निशान इन्होंने मिटान के मारे आमिर अपनी बकरी ने इत को अच्छी तरह चकरा दे तो जासु पावन का निशान मिट जामा। 3 रात गार में गुजारी, दिन को गार में ही दुब का बैठा रहता और 3 रात गार में गुजारी, दिन को गार में ही दुब का बैठा रहता। एक दिन मक्का वाला जो इन दोनों साथी ने शहर से बाहर हर गैल पे ढूंढ रहा, जिगे जिगे टोली बना के फिर रहा कि हाथ आ जावा तो पकड़ लेवा। एक दिन एक टोली सौर का पहाड़ तक आ पहुंची। हुन खड़ा बतलान लगा कि कहीं यह पहाड़ पे जो गार है वहाँ में तो ना दुबका बैठा। कोई कहवे ये सख्त पहाड़ है, हीन कैसे चढ़ा होएगा। काई ने सलाह दी जब आए गया हो तो गार तक भी देख लो, शक निकल जावे। दुश्मन की आवाज़ इतनी पे सुन के अबू बकर घबरा गो कि जब गार पे आएगा तो हम तो दिख जाएंगा। आपने वो को तसल्ली दी और फरमाई ला तहज़न इन्नल्लाह माना, घबरा मत, अल्लाह हमारे साथ है। काफिर गार तक आया। अल्लाह ने अपने नबी की हिफाजत नो करी कि गार के मुँह पे वाई वक्त एक मकड़ी भेजी, जाने गार के मुँह पे वाई वक्त एक बड़ो सो जाड़ो बना दियो। उजाड़ो देखन में नू लग रहो कि जाने कितनी मुद्दत सुबानो पड़ो है। जाला के साथ अल्लाह ने एक कबूतरी भेज दी, वह को घोंसला बना दियो। घोंसला में अंडान पे वो कबूतरी बिठा दी। अब जब मुशरिक पहाड़ पे चढ़ के गार तक आया तो गार पे ऐसो भारी जाड़ो लग रहो। अंदर बैठा नबी और अबू बकर ने उनका पाँव देख रहा। एक बोलो अंदर झांक के देख लो, दूसरो बोलो कि तुम्हें अकल ना है, बाहर इतना बड़ो जाड़ो लग रहो है, जाने कितना दिन पुरानो, जे कोई अंदर जातो तो जाड़ो साबुत रहतो, टूट ना जातो। दूसरो बोलो ये कबूतरी बैठी है, या को घोंसलो टूट जातो, अंडा फूट जाता। वो ही नहाया और ऐन पे आके अल्लाह का हुक्म से बगत गा। 3 दिन और 3 रात निकल गई तो चौथी रात को अबू बकर का घर सु 2 ऊँटनी आ गई। अबू बकर सु आपने फरमा दी घने दिन पहले कि मोलू हिजरत को हुक्म आ जाएगो तो वाई वक़्त सु अबू बकर ने सफ़र के मारे ख़ास 2 ऊँटनी छोड़ दी ही। वो खा पी के खूब चर पी के मोटी ताज़ा हो गई ही। वाह ने आपको बताई कि मैंने ऊँटनी तैयार कर राखी हाँ। आपने इतना ख़ास बेली सुबह तोहफो लेने को पसंद ना करो और फरमाई कि मैं तो ऊँटनी का पैसा देऊँगो, नहीं तो ना ले सू। अबू बकर ने आज सीसु आधी नीसु इनकार करो, पर आपने फरमाई लेऊँगो तो नकदी, नहीं तो ना ले सू। या हमारे मजबूर हो के अबू बकर ने आपसे कीमत वसूल करी। अब वो ऊँटनी 4 महीना में खूब सेहतमंद होगी। आज रात उनकी ज़रूरत थी। एक जगह तय कर ली ही कि ऊँटनी होन आएंगी। चौथी रात गार से निकल के दोनों जी उद को चला। हुन आमिर बिन फ़हीरा गुलाम एक और आदमी के साथ 2 ऊँटनी लेके खड़ो हो।